Neha, are you present? Yes, sir. Good हाँ, morning. there you Good are. afternoon, sir. Hi, good Yes, afternoon, good afternoon. कैसे हो बेटा? सर ठीक हूँ. Okay. You have some time. आपका 18th का इंटरव्यू है, right? Yes, sir. And how's the preparation? How have you managed till now? Sir, it is going fine, but I'm little bit nervous. थोड़ा नर्वस तो होना चाहिए. नर्वस नहीं हो तो प्रॉब्लम है, isn't it? अच्छा, मॉक सेशंस दिया है कुछ कि नहीं दिया है अभी? Sir, I have given two online mocks. One ऑनलाइन was मॉक्स. not good. One was a little bit on fine side. और कहाँ पर दिया तुमने? Sir, Sankalp I have given that didn't went well, and another I have given with some of the previous current going on officers in the service. Okay, amongst your known Yes, okay group. ठीक yes. है, ठीक है. Oh, Rahul has joined us. ठीक है. Okay, so Rahul will sit and watch. Okay, which is part of learning. So I hope you're okay with that, right? Neha? Yes, yes, sir. अच्छा, so let's talk about पहले कि what did not go right at Sankalp. That's more important for me. Sir, देखो मैं my let me explain let me explain this to you. मैं मॉक्स तो लूंगा, ठीक है. ओके, यू आर विथ मी. जितने बार चाहते हो मॉक्स ले लेंगे, कोई बात नहीं. बट मॉक लेना मेरा इंटेंशन है नहीं. ओके, माय इंटेंशन इज कि लेट मी फाइंड आउट व्हाट्स वर्किंग, व्हाट्स नॉट वर्किंग, क्या चेंज कर सकते हो. ठीक है, विल हैव सम कन्वर्सेशंस, आई विल टीच यू समथिंग. ओके, एंड yes, देन विल ट्राई टू इम्प्रोवाइज ऑन दैट. ठीक है, सो आई एम बीइंग इंट्रूसिव, आस्किंग यू क्वेश्चंस. बताओ क्या हुआ, नहीं हुआ, व्हाट्स गोइंग राइट, रॉन्ग. सो टेल मी राबिया, बताओ संकल्प में क्या गड़बड़ हुआ. sir. My confidence from the very first question they have asked, I was not able to answer it, and from that it was like a ladder, like it was going down, 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 down to the last question. They grilled me. They wanted to test that how I turn up to those questions, but I couldn't answer them. It was my first mock, and also they asked me geographical questions. There also I was not able to answer them properly. For जैसे example, जैसे the recent volcano question of Haile Gubi, I was not able to explain them that how it is going to create a new nascent ocean. The African rift is going to apart. I was not linking the topics through my core geography. And पता when नहीं है या वहां पर स्ट्राइक नहीं कर रहा था? सर वहां पे स्ट्राइक नहीं कर रहा था, पता तो था सब कुछ, बट मुझे पता नहीं था कि कैसे लिंक करना है. नाउ आई एम वेल वर्स्ड विद कि हाँ हाउ आई हैव टू अप्लाई द लिंकेजेस. और Sir, क्या बताओ second, मुझे क्वेश्चन. second they asked me about mathematics as it was my graduation subject. I ज्योग्राफी में और क्या क्या मिस किया आपने? geography mein they asked me about tell us five first thing which Rajasthan comes. So as I come from a geography student, the first should be area, and it didn't came in my mind that Rajasthan is having largest area in India. And sir, I thought like I messed the whole session अच्छा, there. ठीक है. ये दो क्वेश्चन ज्योग्राफी में और कुछ था? Yes, sir. They have asked me why Nordic countries are known as Nordic. I said it lies in the Arctic. That is why. Then they said no, it's because of they lie in the northern sphere. नॉर्थ. That is why. नॉर्थ इज अ जर्मन या स्कैंडिनेवियन वर्ड फॉर नॉर्थ, नॉर्डिक. ठीक है. ओके, और क्या मुझे बताओ. गिव मी ऑल द क्वेश्चंस. आई वांट टू Yes, नो कि sir. कौन से क्वेश्चन फंसे हो. So then they asked me about sushi diplomacy. I was aware about that there is a axis going between China, Taiwan, and Japan, but I was not well versed with how they are branding it. Apart from the Prime Minister's video of Taiwan, who was eating sushi in his plate, I was aware about that only. They were asking like on cakes, on muffins, everywhere. These sushi images are flourishing on the social media. That is how they are branding it. So I was not aware about that. They have asked me about emission gap report there. I haven't read it, and I was not knowing the details about it. So again I messed over there. Basically I feel like I was not well prepared with the layering kind of questions they have asked me. I was like, I know only peripheral knowledge I was having about situations. then they asked me अच्छा, ठीक. then they asked me about the aircraft thing which got diverted because of the Haile Gubi volcano. So हाँ. again, I was having peripheral knowledge that I didn't knew it didn't came to my mind that the engine, because of the engine damages that these small stones take place.
Because of that, the flights were diverted. I was having idea that there were small stones, ash, and kind of that create problem in navigating. So I messed up over there as well. Apart from that, they asked me about my hobby, that cooking. Then they said, okay, tell us about that, how cooking is contributing in India's GDP. Then, sir, again, I was numb. I didn't knew about it. And then they asked me, tell us about the potential cooking holds. I couldn't relate it because I was not able to think at that point of time. But sir, now I आपका realize that, पहला क्वेश्चन क्या था जिसमें आप फंसे? sir, it was a geographical question only, the Nordic countries. He said, I know you come from geographical background. Let me ask you some factual questions. Sir, as soon as he said factual question, in my mind, I thought like, I don't know because I haven't read it. I'm going to mess it. And that thing in my mind led to the consequence of not replying to the Nordic countries. It was very easy if I could have applied my mind that Nordic, North comes that because of North. ठीक है, अच्छा, और क्या मैथमेटिक्स में पूछा? Yes, sir. Maths mein, they have asked about Karparker's constant. They have asked about Fermat's theorem, and again the use of prime number. I didn't knew about it. I haven't prepared. I was prepared with the answer that, sir, I have studied mathematics in my graduation, and I'm not knowing about it. Then they said this shouldn't be the answer. Then Yes. then I prepared mathematics on the peripheral level. The questions they ask in interview. अच्छा अच्छा, तो ये आपका पहला इंटरव्यू है? Yes, sir. अच्छा, and which attempt is this of yours? Sir, this is my fourth attempt. Fourth attempt. ठीक है. So I think एक तो आपका प्रिपरेशन शायद it was not very thorough. आप शायद एंटिसिपेट नहीं कर पाए थे अपना. And second is you got nervous maybe. ठीक है, तो आपने 2 दिन में 3 मॉक्स दे दिया, right? No, sir. That day only I have given 2 mocks. One was in the morning with the Sankal, and And in when was later this? evening. When was this? परसों, कल? So it was on 6th or 7th. अच्छा, 6th or 7th. Today is 9th. Okay, fine. I have a fair idea. What I'm asking you is, देखो, एक मिस्टेक ये भी होता है ना, हम जैसे कि आप, मैं पूरा प्रिपरेशन नहीं किया था, आप चले गए थे. आइडियली आई वुड हैव वांटेड कि आप थोड़ा और मॉक सेशंस देखो, इंटरैक्ट कैसे डिस्कशन करेंगे हम, वो करो और फिर मॉक जाओ. तो कोई बात नहीं, there's no formula there. ठीक है. So let me ask you questions now that I know something. Okay, but एक चीज और चीज है नेहा, बहुत ज्यादा मॉक्स मत देना. ठीक है, एटलीस्ट नॉट इन सच क्लोज स्पेसिंग्स. कुल मिला के आपको 2 3 4 मॉक काफी होता है, ऑन द हायर साइड. हम तो बच्चों को बोलते हैं 2 या 3 2 मॉक, एक पैनल देना दे दो. उसके बाद उससे फीडबैक मिल जाना चाहिए आपको. क्या उस फीडबैक पे ढंग से काम करो. ठीक है. सो माय रिकमेंडेशन, डोंट गिव टू मेनी मॉक्स. होता क्या है कि फिर कन्फ्लिक्टिंग व्यूज मिलेगा आपको. ओके, आपको हेल्प करने के बजाय इट विल पुल यू डाउन वेरी बैड. ओके, सो दैट्स जस्ट एन अलर्ट हियर. ठीक है. Let me start asking you questions now. Let's see how you are doing and I'll guide accordingly. ठीक है. Good to go, Neha? Yes, sir. Okay. Okay. So, Neha, you are a student of mathematics graduation, Yes, and sir. you have taken geography as your optional. Yes, sir. Do you have any good reason not to take mathematics optional? Yes, sir. So while I was in my college years, I was having geography as my general elective for 4 semesters, and I was part of disaster management society in my college. There, I have got liking towards geography as a subject. I also did my masters in geography only, sir. The inclination towards geography started from there. That's why I have taken optional as geography. Then why does your details tell us mathematics in your honors and not geography in the honors? Sorry, sir. Sir, by then I was not aware about the geography as a subject, that what teachings it holds, what subjects it teaches. Sir, after I got introduced in my first year as a general elective subject, geography, I continued it till my fourth semester, which college provides.
then and there I have decided that I'll do masters in geography itself. Therefore, I have chosen geography as optional. 7.7 out of 10 CGPA is a good score or a bad score? Sir, it is an average score, if I say. Average score. अब सुनो नया, my input quickly. मैंने क्या पूछा तुम्हें? मैंने पूछा तुमने मैथमेटिक्स क्यों नहीं लिया? तुमने Yes, क्या sir. आंसर दिया? मैंने ज्योग्राफी क्यों लिया? क्यों लिया? ठीक है, a small nuance. तो ज्योग्राफी क्यों लिया बोलना अल्टीमेटली, बट स्टार्ट विथ सेइंग कि मैथमेटिक्स क्यों नहीं लिया. ओके सर. ठीक है, तो इसके कैसे बताओगे आंसर? अब तुम सच में बताओ कि मैथमेटिक्स क्यों नहीं लिया. टेल मी अ वेरी ऑनेस्ट रीजन बस. So because I didn't like maths as a subject in my graduation. ठीक है, अब ये चीज को ठीक से बोलो, क्या पसंद नहीं आया या फिर क्या प्रॉब्लम था मैथमेटिक्स में? बिकॉज तुम मिरांडा हाउस में हो. Yes, sir. ओके, यू आर अमंग द बेस्ट स्टूडेंट्स. मैथमेटिक्स आराम से मिलता भी नहीं है. तुम Yes, चूज sir. करके मैथमेटिक्स लिए हो, तुम कुछ भी ले सकते थे, राइट? ओके, अब बताओ मैथमेटिक्स पसंद नहीं था इज अ जनरल स्वीपिंग स्टेटमेंट. अब बताओ कि मैथ में क्या प्रॉब्लम हो रहा था. गिव मी 2-3 पॉइंट्स. Sir, I was not able to learn mathematics properly. I was not into mathematics by then. I didn't like studying maths. I studied only while I was इसी having को डीप exam. में जाओ, क्या पसंद नहीं था? कोई सेक्शन बोलोगे कि सर वो वाला पार्ट मुझे दिक्कत हो रहा था? फ्रॉम माय नॉलेज, ओके, मे बी कैलकुलस था, मे बी टॉपिक्स ऑफ Sir, कोई it थ्योरम was, होगा कोई. yes, it was abstract mathematics which I didn't like at that point of time. एब्स्ट्रैक्ट का 2-3 टॉपिक का नाम बताओ. So I'm not able to recall. यू टेक अ ब्रेथ. ओके, पढ़े हो तो जीरो थोड़ी होगा. 2 नाम तो बता सकते हो एब्स्ट्रैक्ट में. So I'm not able to recall exactly. टेक योर टाइम. क्या होगा, क्या पेपर याद करो. पेपर 2 बोलो, पेपर 3 बोलो, ओके, पेपर 1 बोलो, सेमेस्टर 1 में बोलो. कुछ एक तो पता होगा, ऐसा थोड़ी जीरो है. कुछ एक टेक्निकल मैथमेटिक्स बताओ मुझे. So it was basically the proof part which we do. नाम, टेक्निकल नाम बताओ एक मैथमेटिक्स का. Sir, फोन तुम्हारे पास है? yes, sir. ढूंढो अभी. आई टेल यू हाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन. अच्छा, तो फोन में ही तुम बात कर रहे हो ना? अच्छा, ठीक है ठीक है, तो Sorry, मैं sir. तुम्हारे ढूंढ लेता हूँ. कोई बात नहीं, नॉट ए प्रॉब्लम. Yes, sir. It was linear algebra, sir. अच्छा, और Sir, it was real analysis as well. okay, something else, some more technical. Mine says abstract algebra, linear algebra, real analysis, Yes, discrete mathematics, topology, introductory. Yes, sir. कुछ स्ट्राइक कर रहा है? हाँ sir, Okay, हाँ. होमोमॉर्फिज्म. अच्छा, अब तुम्हारा काम ये होना चाहिए कि एक बार यूपीएससी का सिलेबस देखो और ये टॉपिक से कितना वेटेज है. ठीक है, देखो, मैं तुम्हें ये सवाल मैंने क्यों पूछा तुम्हें कि तुमने मैथमेटिक्स क्यों नहीं लिया. टेल मी व्हाई. मैंने क्यों पूछा होगा तुम? थिंक ऑफ दिस. Why will interview ask this question to you? So because maths is a very good subject, and if it मैं क्या टेस्ट कर रहा हूं तुम्हारे बारे में? I'm asking you कि मैथमेटिक्स क्यों नहीं लिया. एक तो नया एकदम रिलैक्स करो, ठीक है? आई एम नॉट इंटरव्यूइंग एट ऑल. आई एम टीचिंग यू सम थिंग्स और Yes. तुम्ही से निकालूंगा आंसर्स. अदरवाइज क्या है ना, ये फैक्ट नहीं पता था, ये फैक्ट पढ़ लिया, सर कुछ और फैक्ट पूछ दिया. वो नहीं पता था, वो पढ़ लिया, फिर ये फैक्ट पूछ दिया. उन सब में कॉमन थ्रेड है. ये कॉमन थ्रेड को कैसे आंसर किया जाता है? अदरवाइज तुम घूमते रहोगे. ओके, सोशल डिप्लोमेसी पूछ दिया, कहीं और जाके कुछ और डिप्लोमेसी पूछ देगा, और मैंने वो नहीं पढ़ा था सर. तो नहीं पता है तो कैसे बोला जाएगा? तो कुछ एक कॉमन थ्रेड होगा इसका. तो फर्स्ट आस्क मी आंसर. ये मुझे क्वेश्चन पूछा मैंने कि व्हाई डिड यू नॉट टेक मैथमेटिक्स. इससे मैं क्या तुम्हारे बारे में जानना चाह रहा हूँ. sir, why I didn't stick to one subject and why I moved to आई another. वांट टू नो तुम लॉजिकल रैशनल पर्सन हो कि नहीं, या रैंडमली डिसीजन लेते हो. मुझे क्या मतलब, तो मैथ लो, जो भी लो, तुम्हारी मर्जी है. बट इफ यू कांट एक्सप्लेन अ लॉजिकल रीजन ऑफ व्हाई यू आर टेकिंग और नॉट टेकिंग सब्जेक्ट, इज अ स्टेटमेंट ऑन तुम्हारा दिमाग लॉजिकली काम नहीं कर रहा. तो लॉजिकल आंसर क्या होगा? सर मैंने मैथमेटिक्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, मैं अच्छी स्टूडेंट हूँ, आई वेंट टू कॉलेज, इट वॉज माई चॉइस. बट जब पढ़ने बैठी सर, उसमें बहुत एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट्स हैं. एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट्स जैसे कि लीनियर अलजेब्रा है, ये है, ये है, ये है, ठीक है. एंड दोज आर नॉट माय नेचुरल स्ट्रेंथ्स. एंड व्हेन आई कंपेयर्ड माय सिलेबस विद माय यूपीएससी सिलेबस आल्सो सर, हालांकि मेरा मैथ में अच्छा मार्क्स था सर, एंड आई फाउंड यूपीएससी हैज मोर वेटेज ऑफ दोज एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स. Okay. Therefore, sir, I decided कि I would rather take something which can
which I can relate with, and also something that has overlap in GS also. तो GS सर बहुत बड़ा एरिया है, ठीक है. So geography में इंटरेस्ट था मेरा सर. Geography, I was doing well. The natural choice after mathematics was geography. Now compare this answer with कि सर मुझे अच्छा नहीं लगा. मुझे अच्छा नहीं लगा इज बिग आंसर ना. सो मुझे हर आंसर में मुझे थिंकिंग ब्रेन चाहिए, ठीक है. मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, मैंने ना सुना भी नहीं है व्हाट इज सुशी डिप्लोमेसी, मुझे पता ही नहीं है. लेकिन मुझे सुशी वर्ड पता है. तो अब मैं इसको कैसे आंसर करूंगा कि सर मुझे, आई एम सॉरी सर, आई can't recall the details of sushi diplomacy, but sir, we are living in times when there is lot of importance of soft diplomacy. Okay, that includes culture, that includes sports, that includes music. So I can only guess, sir, sushi diplomacy probably is linked to diplomacy of East Asia that might include Japan, China, Korea, Taiwan. Okay, maybe because the sushi happens to be a very common food there, a popular food there. Okay, so I'm just guessing, sir, this could be related to something around South China Sea, something around political relations between these three countries. तो क्या हुआ, मैंने, मुझे पता नहीं है क्या आंसर है, बट मैं लॉजिकली, सो पूरा दिमाग मेरा चल रहा है ऑन लॉजिकल रीजनिंग. ये इंपॉर्टेंट है नेहा, जो तुम्हें प्राइम नंबर्स के बारे में पूछा गया. Yes, ठीक sir. है, अब एकदम क्लीन स्टेट करो. क्या तुम्हें पता नहीं है व्हाट आर प्राइम नंबर्स? Sir, I know. कुछ एकदम जीरो नॉलेज है क्या तुम्हारा? ऐसा तो नहीं है. Yes, sir. दो तीन इंटरेस्टिंग बताओ प्राइम नंबर्स के बारे में, क्या क्या जानते हो, दो तीन, एनी इंटरेस्टिंग थिंग दैट यू. ओ मैथमेटिक्स नहीं भी हो, कोई दिक्कत नहीं. Sir, it is the number which is divided by one and itself only. हाँ, तो इसको कैसे बोलोगे? इसको तुम्हें इंटरेस्टिंग बताना है. और क्या जानते हो? ये तो डेफिनेशन हो गया स्कूल का. और क्या जानते हो समथिंग इंटरेस्टिंग अबाउट प्राइम नंबर्स? कुछ जानते हो? Yes, sir. कितने प्राइम नंबर्स हैं, क्या जानते हो बताओ? Sir, 2 is the smallest even prime number. और क्या जानते हो? Sir, through prime numbers we can make different kind of combinations which can be used in security purposes. For example, in cyber security, in अच्छा, और क्या जानते cryptography. हो? क्रिप्टोग्राफी, और क्या जानते हो? So prime numbers have some unique property which are not found in the other numbers of number system. अब इतने से ही मैं आंसर करूंगा, rather than saying कि मैं कुछ नहीं जानती हूँ सर, मैं भूल गई हूँ. Okay, sir, I will attempt answering. Prime numbers are some of the very interesting numbers. Okay, prime numbers, okay, have this property of not being divisible by any other number but two. This unique property is what makes it very useful in security codings because वो divisible होते नहीं हैं. Okay, this has been used in binary functions or something of that kind. Okay, prime numbers, people have tried to research on how many prime numbers are there. Okay, and then they couldn't find something ऐसे कुछ करके. ऐसा ही कुछ नंबर, कुछ एक नंबर बता. आई मीन, थिंक ऑफ एन एंगेजिंग आंसर विच इज हाफ बेक्ड मे बी बिफोर यू से आई डू नॉट नो. ठीक है, यहाँ बैठे हो नेहा, अब बताओ आप दिल्ली में हो, ठंड, वेयर यू राइट नाउ? वेर इन राजस्थान, शिखर में हो अभी? नहीं सर, राइट नाउ राजेंद्र नगर दिल्ली. राजेंद्र नगर में हो तो विंटर चल रहा है, तो तुम्हें क्या लगता है क्या मौसम लंदन में होगा? तो आंसर फ्रॉम यू कुड बी, सर आई डू नॉट नो, लंदन तो मैं गई नहीं हूं, ना मैंने सुना है. ओके, ये कह दिया आंसर तुमने. दोबारा सोचो, तुम गई नहीं हो तो क्या कह सकते हो यहाँ पर? सर विंटर का टाइम है, विंटर शुरू हो रहा है, लंदन काफी नॉर्थ लैटिट्यूड पे है, सो आई एम श्योर सर वहां पर कोल्ड होगा, विंटर सेटिंग इन. बट सर विंटर, मैंने ज्योग्राफी में पढ़ा है सर, ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है वहां पर, बड़ा वेरिएबल वेदर होता है. ओके, वहां पर साइक्लोन्स होते हैं, कभी रेन कभी स्नोफॉल. तो मेरे ख्याल से वो अभी भी हो रहा होगा. ओके, और सर ब्रिटेन इज इटसेल्फ प्रीटी नॉर्थ साउथ. द विंटर इन द स्कॉटलैंड विल बी अ बिट मोर सिवियर देन विंटर इन लंदन. ठीक है, वहां पर सर ज्योग्राफी में पढ़ा है सर, देयर आर वार्म करेंट्स देयर. बस इतना ही काफी है. मुझे कौन सा मतलब है तुम लंदन गए हो नहीं गए हो? तो दिस इज एन आर्ट दैट यू हैव टू लर्न बिफोर यू जंप इनटू आई डू नॉट. अब मैं तुम्हारा क्वेश्चन उठा रहा हूं, ठीक है? अब बताओ कुकिंग का जीडीपी में क्या कंट्रीब्यूशन है? क्वेश्चन पूछ दिया, तुमने कह दिया मुझे नहीं पता, वॉट एवर. अब लॉजिकली, ठीक है सर, कुकिंग इंडिया में सर डायरेक्टली तो आई डोंट हैव नंबर्स, बट आई कैन ओनली गेस सर, कुकिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हॉस्पिटैलिटी सेक्टर. कुकिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रूरल इकोनॉमीज. डायरेक्टली लिंक टू कुकिंग सर हमारे स्पाइसेस हैं, कॉन्डिमेंट्स हैं.
ओके, एक बहुत थ्राइविंग यूट्यूब का भी बिजनेस है कुकरीज पे. So, well, I can't put a number to it, but I think a significant amount of tourism sector का part है. And actually, I'm surprised, sir, इतना बड़ा कुकिंग हमारा होकर हम ऐसे. अच्छा, ये बताओ, कुकिंग पहले पूछा था या सुशी डिप्लोमेसी पहले पूछा था तुम्हें क्वेश्चन? सुशी पहले सर पूछा होगा. हाँ सर, आई एम शायद गेसिंग लॉजिकल. सुशी मुझे लग रहा पहले पूछा होगा. जब खत्म हो गया, चलो इसको कुकिंग में छेड़ते हैं. तो अब तुम मुस्कुरा के बोलते, सर आई एम वेरी सरप्राइज. हम जैसे सुशी डिप्लोमेसी चलता है सर इंडिया में, वी शुड हैव समथिंग ऑन मुगलाई डिप्लोमेसी. ओके, वी कैन हैव ओके डिप्लोमेसी अराउंड इंडियन स्वीट्स. ठीक है, दिस इज योर प्रेजेंस ऑफ माइंड. और ये चीज बेटा आप याद करके नहीं जा सकते. दिस इज प्लेइंग विद द क्वेश्चंस. इट्स ए कन्वर्सेशन. आपको पैनल को इंगेज करना है. यू हैव टॉक टू देम, यू हैव टू इंगेज देम. यू हैव टू find ways how to answer without looking like you are giving a vivacious answer. इतना बोलोगे तो वो थोड़ी लेके बैठे हुए पेपर कि अगर ये आंसर नहीं बोली तो क्रॉस कर देंगे. ऐसा नहीं है. मैं कुकिंग पूछ दिया, अब तुम जो बोलोगे ना उससे उठाएंगे फिर. अच्छा बताओ, राजस्थान का क्या इंपॉर्टेंट कुकिंग आइटम्स हैं? ठीक है, दो तीन नाम बताते जो भी है सर. राजस्थान में भी सर दो तीन अलग अलग रीजन्स हैं. एक टिपिकल वेस्टर्न एरिया में डेजर्ट वाला, वहां का अलग कुकिंग है. एक नॉर्थ ईस्टर्न ओके जो एरियाज हैं, जयपुर के शेखावती रीजन सर, वहां का अलग कुकिंग है. सदर्न पार्ट में हारोटी वगैरह जो भी है वहां का अलग कुकिंग है. देन यू इंगेज देम, राइट? तुम्हें एकदम बता देते हो सर मुझे कुछ नहीं पता, देन दे डू नॉट, उनको नहीं पता आगे क्या पूछेंगे तुम्हें. You have terminated a line of thought. Do you get the point here? यस सर. तो अब से कोई भी क्वेश्चन फटाक से नो मत बोलना, तो सोच लेना. एंड अगेन रिमेंबर, स्किल व्हाट आर दे टेस्टिंग? दे आर नॉट टेस्टिंग योर एबिलिटी टू आंसर ए क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ फैक्ट्स एंड नंबर्स. दे आर टेस्टिंग कि तुम लॉजिकली सोच कैसे रहे हो. हाउ आर यू लिंकिंग थिंग्स, हाउ आर यू डीलिंग विथ थिंग्स जो तुम्हें पता नहीं है. तो तुम्हारा पर्सनैलिटी वहां निकल के आता है. ये जो क्वेश्चन है से थिंक ऑफ कि एमिशन गैप रिपोर्ट क्या कहता है. ठीक है, क्या लिख रहे हो नोट्स? सर आपकी आपकी बातें. हाँ, तो मैं तुम्हें छेड़ रहा हूं दोबारा. ठीक है, ओके. यू आर नेहा, यू आर ए वेरी प्लेजेंट पर्सनैलिटी टू टॉक टू. स्माइलिंग फेस, ओके, वेल ड्रेस्ड गेटअप है तुम्हारा, एक पर्सनैलिटी है. ओके, you need to just use this to your advantage. जैसे ठीक है, जो लिखना लिखो, मैं तुम्हें छेड़ रहा था. जो लिखना लिखो, कोई बात नहीं. तो इस एमिशन गैप रिपोर्ट फॉर एग्जांपल, ओके, अब मैंने पढ़ा नहीं है. ठीक है, अब हम क्या बोल सकते हैं? अब पढ़ा नहीं है एकदम जीरो थोड़ी है, कुछ तो आइडिया है. सर एमिशंस डेवलप कंट्रीज में हैं, एमिशंस कोल के हैं सर, एमिशंस रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एमिशंस हैं. Okay, while I have not read the details, I am very sure the report tells us about कि massive gaps in emission objectives हैं. ये कुछ emission targets हमने set किए थे पेरिस डील में, ताकि ये temperature of the earth remains within 1.5, worst case worse within 2 degrees. And these emission targets are quantifiable and countries are given NDCs, okay, to achieve. But sir, if I'm not wrong, the last time I had looked up, most of these emissions have not been met, and the most concerning gaps are in coal and fossil fuel emissions. And I'm only guessing, sir, or I'm taking a hazarding guess, sir, emissions related to agriculture भी जो हैं sir, वो भी meet नहीं हो रहे होंगे, because we continue to have swamps, agriculture, rice farming. ठीक है, तो इतना कुछ बोल के छोड़ोगे ना, फिर मैं तुमसे पिकअप कर सकता हूं. इफ यू रिमेंबर दिस, द बोर्ड डज नॉट कम प्रिपेयर्ड विथ ये मैं 10 क्वेश्चन पूछूंगा. द बोर्ड ओनली हैज एन आइडिया कि अच्छा यहां से शुरू करते हैं, एंड आई विल आस्क यू अकॉर्डिंग टू हाउ यू रिस्पॉन्ड, हाउ यू आंसर. तो इट इज योर आंसर दैट गिव्स मी वन मोर क्वेश्चन. अगर तुम ब्लॉक कर देते हो ना, मैं भी फिर अरे यार मैं ये तो आगे मैं क्या पूछूं फिर से. यू आर ब्लॉकिंग माई ट्रेन ऑफ थॉट.
बहुत बार आप आंसर करते हो ना, मैं तुम्हारा सुन रहा हूं, एंड लिसनिंग टू यू आई डेवलप माई क्वेश्चंस। ठीक है, सो एकदम एब्रप्टली राजस्थान में सबसे बड़ा क्या है, ऐसे कुछ क्या पूछा था, व्हाट इज द Uh, बिगेस्ट थिंग? या Rajasthan is number one in five things. Top one in five things. So it should like come to my mind that it was largest तो city चलो, in तुम्हें this. याद नहीं था, चलो तुम्हें नहीं पता था, अब मैं दोबारा पूछता हूँ। I'll ask you a question. Okay, let me take you for surprise there. So Chhattisgarh is top one in three things. बताओ नेहा, किसमें टॉप वन है? Sir, having in forest cover. हम्म, So second would be minerals. Third would be tribal diversity in Chhattisgarh. मिनरल्स, कौन सा मिनरल्स? Sir, iron ore and coal. आरिश्वर नंबर वन है आयरन ओर में? Not sir number one, but in top अब three. इतना है ना, आप इसको दोबारा बोलो, बना के बोलो। Yes, sir. Sir, I'm not sure about the numbers, but Chhattisgarh comes in the top states of Rajasthan among the tribal diversity. Second would be mineral resources, for example, coal and iron ore. Third would be the forest cover. Yes, so sir, exact number but I can't recall, but I'm sure Chhattisgarh is among the top. Yes, sir. among the top यूज करके तुमने डाइल्यूट कर दिया अपना आंसर, ताकि वो एकदम पकड़ न ले। मिनरल्स सर यहाँ पर काफी है, एक्सटेंशंस ऑफ छोटा नागपुर प्लेटो है, there is iron ore, I can recall there is coal also, like Bilaspur Korba region. Chhattisgarh is dense forest, Bastar region, and tribal diversity. Yes, sir. ठीक है ना, ये आंसर करने के लिए डिड यू नीड टू बी इन छत्तीसगढ़? No, sir. बस इसमें नहीं नहीं, तुम सब गलत बोल रहे हो, एक्चुअली छत्तीसगढ़ इज नंबर वन इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ठीक है, आई एम सॉरी सर, आई कुड नॉट रिकॉल दैट। ठीक है, तो ये कन्वर्सेशन इज गोइंग टू हेल्प यू मोर देन ब्लॉकिंग योरसेल्फ की, बिकॉज तुम क्या क्या सीख लोगे ऐसे में। अब राजस्थान का तुम्हें याद ही नहीं आ रहा, सोच के बताते, राजस्थान भी कल्चरल डाइवर्सिटी है, राजस्थान हैज द लार्जेस्ट एरिया ऑफ डेजर्ट्स इन इंडिया, इसमें क्या गड़बड़ है? Sir, और डेजर्ट्स होगा, मार्जिनल लैंड होगा, तो लैंड डिग्रेडेशन भी काफी होगा यहाँ पर। sir, ठीक है, I tried answering that question in terms of number one, but they blocked me. They said no. Another one, no, this is not true. So they were ठीक है, trying to test my patience and my यस, composure there, and I उसको lost it. मुस्कुरा मुस्कुरा के, यू शुड हैव लॉस्ट इट देयर। कोई बात नहीं, these sessions are part of your training, remember this. Yes, sir. The sessions are not a statement on your ability. Yes, sir. को तुम देते हैं ऐसे बता रहे हो ना अभी, ओके, ये तुम बता रहे हो फ्रॉम व्हाट यू नो, मैं बस पुश कर रहा हूं, आई एम जस्ट पुशिंग यू अ बिट हार्डर कि बताओ। Yes, sir. ठीक है, सो व्हाई डिड यू नॉट टेक मैथमेटिक्स? अब समझ में आया क्या करना होगा तुम्हें? Sir, completely. ठीक है, तो अब मैथमेटिक्स तुम्हारे पेपर में दिख रहा है, हाउ कैन यू नॉट डू एनीथिंग देयर? ठीक है, अच्छा एक और चीज, ट्रैवलिंग टू रिलीजियस प्लेसेस, कुकिंग। अब मैं पूछूंगा कि अच्छा ये बताओ, कैन यू रिलेट मैथमेटिक्स टू रिलीजन? तुम्हें रिलीजियस प्लेसेस लिखा है, मैथमेटिक्स टू कुकिंग। Yes, sir. ओके, तो पहले बताओ मैथमेटिक्स रिलीजियस प्लेसेस बताओ, रिलीजन बताओ। Sir, maths is a science subject, and religion is include science as well as the beyond science things, that is belief and faith. So it's like the Venn diagram. So religion is bigger than mathematics, that is science. So it is into the religious sphere, in my opinion, sir. ठीक है, तो रिलीजन में मैथमेटिक्स कहाँ कहाँ यूज होता है? वेयर ऑल डज रिलीजन यूज मैथमेटिक्स? Sir, while there are some religious belief that people pray on certain time, there we use mathematics. And sir, there are also some religious belief of visiting a place in odd numbers. That can be also one of the thing which is related to mathematics. Sir,
Third would be connecting various religious places into a circuit through dots and mapping. There we use statistical data of mathematics. So I believe that. Even the construction uses lot of mathematics, right? Yes, sir. कि जो डोम्स हैं, जो मिनारेट्स हैं, कि जो पिलर्स हैं, कि कुछ सिंबल से मैथमेटिक्स होता है, स्वास्तिका सिंबल मैथमेटिक्स है, डेविड स्टार इजराइल उसमें मैथमेटिक्स है शायद. देयर इज अ मैथमेटिक्स ऑफ मेटाफिजिक्स आल्सो. आई मीन पॉइंट इज तुम्हारे डैफ में ये पॉइंट्स लिंक हो रहे हैं. अगेन आई वांट कि ये सब चीजें सोचो बैठ के. ठीक है. ओके. सो अनदर क्वेश्चन टू यू, नेहा. Neha, you come from Sikar. Yes, Okay. sir. Sikar is where you grew up all your life, or have you also seen some other districts and places? Sir, more or less, I have grown in Sikar district only. But as Jhunjhunu is nearby Sikar, that is my mother's parental district, I used to go there. When I completed my 12th standard, I came to Delhi for my graduation. Before switching to graduation, I went to Germany for a study and culture exchange program. And sir, I thereafter I went to various places around India in terms of traveling to religious places, sir. So traveling to India and Germany. Yes, sir. What was the experience like? What did you see? What did you feel? What could you connect? What you were surprised about? Sir, it was totally very different. एक मिनट सुनो, दोबारा सुनो क्वेश्चन. ये क्वेश्चन मैं क्यों पूछ रहा हूं तुमसे? Because आई एम you नॉट just आस्किंग टू फाइंड आउट तुम क्या क्या जानते हो. अगेन अ थिंकिंग माइंड जो डिफरेंसेस देख सकता है, जो डिफरेंसेस रिलेट कर सकता है. ओके. समबडी हु कैन appreciate the linkages where possible, because तुम्हारे ड्राफ्ट में कहीं भी जर्मनी नहीं है क्या? है क्या सर. हॉबी में लिखा है तुमने? सर अच्छा, एक लिखा है. ठीक है. You mentioned Germany. ठीक है. So as a thinking mind, I expect to know how do you see the places. ठीक है. तो तुम सीकर में रहे हो, बड़े हो, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट देखे हो, लार्जली यहीं रुके हो. अब तुम चले गए जर्मनी. So let's see what does a thinking mind, okay, compare, contrast. अब बोलो. Sir, first thing I observed was that they give respect to each and every worker which works over there. For example, sir, the very first step out of the airport, it was in a bus, and after we reached the destination, the German people were clapping for the driver, and they don't say him driver, they regard him as a captain, and they clap for a successful journey, while we don't do this in India. Second, sir, I observed. Very nice. Yes, sir. Go on. Sir, second, what I observed was that the teaching system over there was basically practical based teaching system. So, for example, we had a session over there. While I was going to that session, I saw there were kids from, I don't remember the class, but they were very small. They were wearing the historical attires, and they were practicing the history of their country, and they were learning through evidence based practical learning, which is basically missing in our education system, sir. The third was similarity in terms of the affection which was shown. So I want to cite one example. I stayed with one of my exchange partner at her house for almost 15 days. When I was coming back, once I cited that I like watermelon of Germany very much, she kept that in my bag, which my mother used to do for me whenever I used to go out. Sir, that part really touched me, that affectionate people also in Germany. We shouldn't say like Western people have detached from the relationships around. So that was very happening part for me at that point of time, because I was just 16, 17 years old. Sir, fourth would be the experience I have
seen there in terms of the time management. So if they say it's 7, then it is 7. And in India, if it is 7, then it can be 7:10, 7:15, 7:30. But there, the time management is truly appreciable, sir. And if you are in Indigo flight, it could be 7 of next month also. अब बताओ राबिया, नेहा, sorry, you're नेहा राबिया, right? Yeah, just Yes, sir. Yes, sir. आप बताओ कि क्या तुम यही आंसर पहले भी देते या अभी पहली बार स्पॉन्टेनियसली बोल रहे हो? नहीं सर, your approach helped me articulate You it. know what in- happened? तुम इस आंसर में you were not stressed at all, and I was very surprised actually. I didn't expect मैं ऐसे आंसर दोगे, और ये आंसर में एक्सपीरियंस भी है, एक एक्साइटमेंट भी है, एक रिलेट कर पा रहे हो, अप्रिशिएट कर पा रहे हो. That's the magic in this answer. Compared to what others were trying, I do not know. Okay, तो अगर मैं शायद प्रॉम्प्ट नहीं करता तो तुम कुछ और बताते. I don't know what would have said. Okay, शायद जर्मनी बड़ा है या डेवलप्ड है, जो भी है. So the point here is this. This was a beautiful answer. इसमें तो मैं कहां से कहां पहुंच जाऊं इस आंसर के साथ में. It's like, you are slipping down. This one answer can bounce you back to next orbit again. और इस आंसर में, okay, they will engage more. They will ask you question. अच्छा, अब इसमें तुम NEP दे रहे हो. इस आंसर में कल्चरल उठा रहे हो, dignity of labor इशू उठा दे रहे हो. Okay, this is a brilliant answer. ठीक है? So good. So your experience in Germany was that. Now that you've talked about the experiential learning in Germany, have you read some of the aspects of the new Indian economic education policy of India? Have you read something on those lines? Yes, sir, I have. Okay, can you tell us about the new education policy? Yes, sir. Sir, it is trying to bring the foundational understanding with the reading and numeracy by class 3, that the students in younger schooling gets knowledge of numeracy and literacy apart from the rote-based learning which used to be done earlier. So second, they are trying to bring is practical-based teachings by introducing teacher training programs through their portals. So third, they are trying to do is integrating the school infra. Ruko. They are trying to bring foundational learning. They are trying to bring teachers training. ठीक है. जब तुमने सुना, पढ़ा about the education policy, तुम्हें क्या लगा पर्सनली कि ये अच्छा है, ये फालतू का डॉक्यूमेंट है, ये अच्छा डिफरेंस है? ओके, तुम्हें क्या लगा पहले बताओ. या तुम पढ़ रहे थे, व्हाट वाज योर जजमेंट ऑन दिस पॉलिसी? Sir, the policy is good, but the ultimate. Not an answer. You tell me. Okay, मैं अब इंटरव्यू नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें बस पूछ रहा हूँ कि नेहा तुम्हें क्या लगा पॉलिसी पढ़ के? Forget the interview part. Genuinely क्या लगा? Sir, maybe this will benefit, but I didn't think that this will turn into good results. अच्छा, तो बेनिफिट क्यों लगा तुम्हें? Sir, because the education system got modified into 5 plus 3 plus 3 plus 4. That is bringing the. तो उससे बेनिफिट क्या हुआ? The bringing the early childhood education inside the school curriculum. That would benefit. और क्या लगा? So, other than that, the. वहाँ नेटवर्क क्रैक कर रहा है नेहा. It's your network or my network, I do not know. Numbers of classes reduced and. नेहा, your network Sorry, is sir. cracking up. आपका नेटवर्क क्रैक हो रहा है, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, आपका स्क्रीन फ्रीज भी हो गया है. We lost her. केदार, राहुल, यशार्थ, कुछ आप सीख पा रहे हो इसमें जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ? Sorry, sir, the net. No problem. I'm just asking. In absence, I was asking
Rahul, Rishad, are you able to understand what I'm doing here? Yes, sir, Yes, sir. definitely. Actually, I also pointed out one thing that while answering some difficult question, we are having that brain fog, which is blocking our thoughts. And चलो, you watch further. Okay, I'm doing something with Neha. You watch her. Okay, let's see. ठीक है. Neha, your connectivity is fine now. Yes, sir. तो नेहा, मैं पूछ रहा था कि फॉरगेट अबाउट इंटरव्यू एंड क्वेश्चन, तुम बताओ, तुमने बताया मुझे अच्छा लगा था दैट 3+2+2 बिकॉज चाइल्ड केयर एक हो गया, और क्या बताया, वो कट गया वाला पार्ट, और क्या अच्छा लगा था? Sir, the syllabus got reduced, so the student exam pressure got reduced, and और क्या? और क्या? also the textbook syllabus is more inclined to the present-based learnings, and so vocational education is also going to be ये done. तुम्हें अच्छा लगा, जेन्युइन अच्छा लगा तुम्हें? Yes, और sir. तुम्हें प्रॉब्लम कहाँ दिख रहा है? Sir, problem in lies in implementation. जैसे क्या उसमें, और बता सकते हो क्या इम्प्लीमेंटेशन प्रॉब्लम लग रहा है? Sir, we are talking about all of these changes which are going to happen, but if we look at the ground realities, uh, the teachers are not well versed with the proper. और क्या, गुड, नाइस, और क्या? The second, the infrastructure is not to base the new education policy. क्या इंफ्रास्ट्रक्चर? Sir, if I talk about my village school, it is not having proper ambience of sitting in a classroom. They are not नाउ digitally. स्टॉप, अब सुनो। अब मैंने पूछा तुम्हें नेहा कि एनईपी सुना है? तुम बोला हाँ। बताओ क्या जानते हो? तुमने क्या क्या आंसर दिया? फाउंडेशनल लर्निंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग। ओके, तो मैं सुन रहा था तुम्हारा आंसर ना, मतलब यार रट्टा मार के आगे बोल रही है। ओके, दिस जस्ट लिस्टिंग डाउन पॉइंट्स फॉर मी। अब इसको चेंज करो, तो बाकी पॉइंट पता, वो पहले आना चाहिए था ना। मैंने पूछा तुम्हें क्या पता है? सर, मुझे जो पता है उससे मैं बहुत खुश हूं। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट द फैक्ट कि सर न्यू एजुकेशन पॉलिसी ब्रिंग्स इन दिस 3+2+2 whatever. Because I personally think, sir, the foundational learning starts with early childhood and care. This is a remarkable improvement where it will formalize a lot of early education. And sometimes this education is missed out by the populations of the lower classes. ये formalize हो गया. So I'm also very happy about the fact that the syllabus is being rationalized. Okay, while we are adding new content, the old content is not properly being removed. So I think now education looks like more oriented towards education learning rather than cramming facts. But sir, having said this, I have my reservations. While we have lofty objectives, which I hope we will achieve, but I have my reasons to doubt the implementation. Okay, I can talk to you, sir, about from my experience itself. In my village, schools do not have proper chair tables, and I don't see how we can train such a humongous range of teachers across the country. So my opinion, sir, this is a brilliant thing in education, provided we can implement it and we can address the more fundamental issues of basic teaching, basic infrastructure, without which it becomes an elitist dream. समझ में आ रहा है? तो मैंने तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया, तो तुमने कहा वही मैंने कहा, with different set of words, but talking from what I actually think about the NEP. मुझे थोड़ी तुम्हारा जीएस थोड़ी टेस्ट करना है नेहा, तुम्हारा जीएस टेस्टिंग हो चुका है। अब मुझे जाना है what does Neha as an aspiring bureaucrat think about the issues. नेहा जो कल डीएम बनेगी, आईएएस बनेगी, आईपीएस बनेगी, डिस्ट्रिक्ट मैनेज करेगी, वो सोचती कैसा है, वो तुम नहीं बता रहे। पहले आंसर में तुमने गड़गड़ा के बता दिया 4 पॉइंट। द एक्सपीरियंस पार्ट वाज मिसिंग। और स्मार्ट होता सर, आई एम इंस्पायर्ड बाय द न्यू एनईपी बिकॉज सर when I went to Germany in my trip, whatever, like I was inspired by the idea of experiential learning in the schools that I saw as a pride, and I hope those models are replicated in India. अब तुमने लिंक किया with experiences. Your interview is this conversation going on. I want to know who Neha is as a thinking person. ठीक है? Make sense? Yes, sir. Okay. एक और क्वेश्चन पूछता हूं तुम्हें,
Rajasthan is a backward state or a forward state? Sir, it is a forward state, going to be more developed with coming years. So, which states of India you think Rajasthan is comparable to right now in India? So not exactly, but there are some criteria which can be compared. So, for example, in terms of renewable energy, the Rajasthan is doing far better than other states. So, in that sense, other states can learn from Rajasthan. And when it comes to education part, there Rajasthan is lacking in literacy levels, which can be comparable to the eastern states of India, which Rajasthan can learn from the southern states. So, Yeah, I'm going back to Neha. You declared Rajasthan is a forward state. So I want more comparisons of Rajasthan with states which are forward states. Again, pause. अब मैं genuinely पूछ रहा हूं तुम्हें, ठीक है? Forget इंटरव्यू, भूल जाओ. तुम्हें क्या लगता है, राजस्थान फॉरवर्ड है, बैकवर्ड है, क्या है? sir, I think it's a combination of forward as well as backward. अच्छा, ज्यादा कंपोनेंट क्या है, फॉरवर्ड क्या है कि बैकवर्ड का है? Sir, backward. बैकवर्ड का है. तुमने फॉरवर्ड क्यों बोला? कुछ दिमाग में चल रहा होगा ना? So I thought like it's in developing stage, so I should say forward. Why should say forward? What was playing in your mind? So I thought I come from Rajasthan, and if I see my state as a backward, then they will think I am having less optimism in और my तुमने mind. फॉरवर्ड बोल दिया और फॉरवर्ड सपोर्ट नहीं कर पा रहे हो, इसका क्या मीनिंग होगा, मतलब बताओ? यू सेड फॉरवर्ड बिकॉज बैकवर्ड बोलती तो बुरा लगता है, ठीक है. वाई फॉरवर्ड? बिकॉज तुम राजस्थान से हो. अब मैं कह रहा हूं, मैं घुमा के पूछ रहा हूं, क्या बताओ क्या क्या फॉरवर्ड है इसमें, और तुम कह नहीं पा रहे हो. हाँ, इसका क्या नतीजा होगा बताओ? Sir, understood कि मैंने वो ऐसे ही बोला just to impress. Yes. You. So don't get that pressure. You have to speak what you genuinely think and know how to say it. भाई, Rajasthan is not a backward state like some primitive district, ऐसा नहीं है. But sir, Rajasthan has lot to aspire, develop. And to be honest, sir, Rajasthan में pockets of development हैं and pockets of backwardness भी हैं. So now you should know more. Sir, districts जैसलमेर चले जाइए, districts, probably tribal नाम बताना, okay, parts of मेवात boundaries, भरतपुर जो भी है वो इतना डेवलप नहीं है. बट देन वहीं उदयपुर है सर, वहीं पर बाड़मेर इंडस्ट्रीज है सर, वहीं पर जयपुर रीजन्स हैं, okay, इवन झुंझुनू फॉर दैट मैटर विद खेतरी, ये बहुत फॉरवर्ड है, डेवलप है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है. अगर रोड क्वालिटी देखेंगे सर, राजस्थान में बहुत अच्छे ग्रेड ऑफ रोड्स हैं, अच्छी कनेक्टिविटी है, डेजर्ट तक अच्छी कनेक्टिविटी है. एट द सेम टाइम सर, okay, हमारे पास इम्बैलेंसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑन इश्यूज लाइक विमेन राइट्स हो, एजुकेशन में हमने ज्यादा अच्छा किया नहीं है. फिर कुछ नंबर बताओ. Sir, बिकॉज हाँ sir, literacy levels are 66% only in Rajasthan. तो तुम बोर्ड को इंप्रेस नहीं कर सकते हो until you can support what you are saying. You can't impress because see, हर क्वेश्चन का फॉलो अप क्वेश्चंस है, एक क्वेश्चन में खत्म नहीं हो रहा है. रिमेंबर दिस. तो अगर तुमने कुछ ऐसा बोल दिया पहले आंसर में विच यू कांट सपोर्ट, ओके, फिर वो इंप्रेशन अच्छा नहीं, बहुत बुरा चला जाएगा. तो योर्स वाज एग्जांपल ऑफ कल्चरल जिंगोइज्म. ओके, कल्चरल पॉइंट उठाकर झंडा लेके दौड़ गए, लेकिन आगे कुछ सब्सटेंस नहीं पता. तो इससे अच्छा नहीं था बोलते कि सर मिक्स्ड है, जो तुमने बाद में बताया मुझे. तुम्ही ने बताया, किसने बताया? Yes, sir. Okay, this is another learning for you. You have to talk because see, जब जस्टिफिकेशन की बात आएगी ना नेहा, तुम वही जस्टिफाई कर सकते हो जो तुम एक्चुअली जानते हो, Sir, या तो understood. जिसमें तुम्हें कन्विक्शन है. कुछ और जस्टिफाई नहीं कर पाओगे तुम. प्लस उसको तुम्हें बना के बोलना पड़ेगा ताकि वो ओवर द बोर्ड ना हो, ज्यादा क्रिटिकल ना हो. ओके, बट उसे यू कांट एस्केप द रियलिटी. ठीक है,
चलो मैं तुम्हें पूछा कि बताओ राजस्थान फॉरवर्ड है कि बैकवर्ड है, तुमने फॉरवर्ड बोल दिया। अब मैं क्रॉस क्वेश्चन कर रहा हूं तुम्हें, ठीक है? अब तुम क्या बोलोगे? आई एम आस्किंग क्रॉस क्वेश्चन कि नेहा तुमने तो बोला था फॉरवर्ड है, okay, you are saying it's forward, but you can telling me the literacy gaps, there are issues of some other development. So finally, what is your take on Rajasthan? So now I have to justify forward. I don't know, तुम क्या बोलोगे तुम बताओ ना। Sir, I'll say it's Can you justify forward? not up to the mark. I will justify backward तो अब क्या plus बोलोगे? forward. अब So क्या बोलोगे? combination of backward plus मॉडिफाई forward. करोगे? Yes. Sir, maybe I went overboard saying forward, but I think wiser, इसको ओन अप कर लो ना। ये सबसे आसान तरीका होता है कि अगर गलती से कुछ बोल दिया और डिफेंड नहीं कर पा रहे हो तो कह दो सर आई थिंक मैं ज्यादा बोल गई। ओके, रियलिटी में सर some parts are forward and some are very impressive developments, but there are also a lot of gaps. Modify करो, उसके बाद सारा झगड़ा ही खत्म है। उसके बाद अच्छा बताओ क्या क्या गैप्स हैं। So I will not hold that forward against you anymore. इसका पता है इसका मतलब क्या होता है? Here is a candidate who is willing to learn, open minded है, उसको उनको पता है यंग गर्ल एक्साइटेड है, डरी हुई भी है, गलत बोल सकती है, but a person who is willing to learn, modify, correct, okay, when shown the process. ठीक है? Yes. Okay. Neha, Miranda House, Geography Masters, and when did you finish your masters? Sir, it was 2024, sir. 2024. Graduation was in 2020. 2020. Okay. So, what is the objective of your life? What do you Sorry, want sir. to do in life? Sir, I want to fulfill a purpose of my life that would be as being serving my parents, and sir, second would be making them proud. Sir, third would be living my life to the fullest uh, within the responsibilities I have. Okay, so um, what do you mean by making your parents proud? You have some objectives in mind? Yes, sir. Hmm. So I come from a village background, and where girls' education is not that prioritized, as my parents have prioritized it for me. They have given their whole life in terms of uh, their likeness and their expenditures. They have make sure that I learn and I grow in my life and I become a successful person in terms of my career at the end of the day. So, sir, I want to fulfill all those responsibilities which they have thought that in life I will be completing, sir. So what are those thoughts that they have you want to complete? Sir, they see me as a successful person in terms of having a successful career, and I'm living my life happily, sir. So your civil services includes that? Yes, sir. It provides one of the best career opportunities in our country, sir. And if not civil services? So it should be civil services for me. If anyhow, if I don't make it into civil services, I would have tried another services in my state, or I would have achieved something else then and there, sir. Now what is that something else? Sir, state services. And if at the end of the day, if I have tried my full potential and if I'm not able to uh, make a successful career in public service, then I would love to serve for my parents at the end of the day. How do you define serving your parents? In terms of having enough financial independent that I can provide them good health and a good environment, which they at their point of life lacked.
I want to fulfill that, sir. A hypothetical question, Neha. Okay, hypothetical, I can be entirely wrong, and I hope it doesn't happen for you. Say you're married and you have a loving husband, caring husband, okay, but very rational man, a very good man, but he has serious problems in adjusting with your family and home and parents. Now that you're committed to your parents, who will you choose? He has serious problems. It's almost make or break of marriage types. Sir, I will beforehand I ask this to my partner if he's having such issues, and if these things persist, I would not marry him, sir. How would you know? You discovered this after 2-3 years of marriage. Sir, then I'll discuss with him, and if he doesn't allow, sir, I think communication will help to resolve this matter. And if at the end of the day he doesn't allow, it is my 3 years of life with my husband, and my parents have given their whole life for me. I would choose my parents, sir, at the end of the day. अब बताओ इस पूरे डिस्कशन में तुम क्या सोचे? व्हाट वाज योर इवैल्यूएशन? व्हाट वाज गुड? व्हाट कुड हैव बीन बेटर? अब बताओ, मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था? व्हाट आई आस्क यू? So you asked me, what is your purpose of life? मैंने शुरू किया था भाई, मैथमेटिक्स भी कर लिया, मिरांडा हाउस भी चले गए, बेस्ट कॉलेज में चले गए, ओके, फिर ज्योग्राफी भी करके तुमने मास्टर्स कर लिया, यंग गर्ल हो, नो गैप एज सच, ठीक है, ये कंटेक्स्ट था, रिमेंबर दिस, ओके। और ये कंटेक्स्ट का एक इंप्लाइड क्वेश्चन था कि क्यों करना चाह रहे हो आईएएस? वाई आईएएस को मैंने घुमा के पूछा तुम्हें, ठीक है। तुमने शुरू किससे किया? आई वॉन्ट टू सर्व माई पेरेंट्स एंड आई विल डू माई पेरेंट्स प्राउड, ठीक है, Sir, I'll एंड make you फुलफिलिंग माई लाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। और थर्ड पॉइंट में आ गया, तुमको एक और चांस दिया मैंने कि बताओ सर्विंग का मतलब क्या है, बताओ प्राउड का मतलब क्या है। तुम्हारा प्राइड ऑफ पेरेंट्स कैरियर से उतर ही नहीं रहा था, तो तुम्हारा पर्पस ऑफ लाइफ बेसिकली है एक कैरियर में घुसना, और मैं बैठा हूं तुम्हें आईएएस बनाने के लिए। अब मैं क्या करूंगा बताओ? यू गेट द पॉइंट व्हाट यू हैव डन हियर? Yes, sir, I have completely, sir. तो वाई आईएएस प्रिपेयर किया है ना तुमने? Yes, sir. अच्छा, तो घुमा के क्यों नहीं निकल रहा है? रीजन Sir. बीइंग वाई आईएएस तुमने इंटरनलाइज नहीं किया है। तुमने अगर वाई आईएएस पूछूंगा तो आंसर बोलोगे, मैं तुम्हें डायरेक्टली पूछने वाला हूं नहीं, शायद मैं घुमा के ही पूछूंगा। तो घुमा के पूछने में तुम्हारा कनेक्शन सेट नहीं हो रहा, तुम्हारा सर्किट वाला। तो नेहा, इसका सोल्यूशन क्या है? जेन्युइनली सोचो, लाइफ में करना क्या चाहते हो? आईएएस एक जरिया है, सीकर से आए हो, शायद बैकवर्ड रीजन है, ठीक है, वहां पर तुम क्या क्या कर सकते हो? ट्राइब्स होंगे, स्कूल होगा, वहां के कोई एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स होंगे, okay, तुम ज्योग्राफी के साथ जा रहे हो, ये अपने आप में सब्जेक्ट दैट यू हैव कम टू मिरांडा हाउस, अ ग्रेट इंस्पिरेशन। सब कुछ आईएएस नहीं होगा तो स्टेट सर्विस दूंगी, अगर स्टेट सर्विस ना हुआ तो मैं कोई और बीएड प्रोग्राम कर लूंगी। इससे थोड़ी पेरेंट्स प्राउड होने वाले हैं तुम्हारा। और सर्व क्या करोगे पेरेंट्स का? तुमको डाल दूंगा फॉरेन मिनिस्ट्री में, डाल दूंगा, लेके पड़े रहो जाके कांगो में, तो पापा माँ को लेके जा पाओगे वहां पर? सर्व द पेरेंट्स तुम्हारे लिस्ट में आना ही नहीं चाहिए। दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड ऑफ अ पर्सन ऑफ योर कैलिबर, एंड वो करो, वो तुम्हारा पर्सनल एजेंडा है। मेरा यहाँ पर है, बताओ क्या करना चाहते हो लाइफ में, सो दैट आई नो दैट सर आईएएस अगर तुम्हें मिल जाए तो तुम वो बहुत बढ़िया कर दोगे, ठीक है। और इसलिए मैं घुमा के पूछा कि सच बताओ, अगर सर्व करना चाहते हो तो क्या अपना घर भी तोड़ दोगे तुम? मैंने यू हैव अ गुड हस्बैंड, फैमिली भी अच्छा है, सब ठीक ठाक है, और पापा माँ को सर्व करने के लिए यू हैव ब्रोकन योर होम कंप्लीटली। इज दैट वाइज? और इसमें तुम घुसे बिकॉज ऑफ योर फर्स्ट आंसर।
तो इसका आंसर क्या होना चाहिए नेहा? सिट डाउन एंड इंट्रोस्पेक्ट कि वाकई में मैं आईएएस क्यों बनूंगी. एंड यू आर नॉट फ्रॉम ए लेस प्रिविलेज्ड सर्कमस्टेंस. फादर इन एसडीएम, राइट? No, sir. अच्छा, He's in, इशुइंग अथॉरिटी है. अच्छा, राइट राइट. व्हाट डज योर फादर डू बेटा? sir, he is into agriculture, sir. एग्रीकल्चर. ओके ओके. प्रॉपर फार्म्स हैं तुम लोगों के? Not that big, sir, but we have. या फार्म्स. ठीक है. ओके ओके. सो फाइन. देन यू कम फ्रॉम अ डिफिकल्ट बैकग्राउंड या मॉडेस्ट बैकग्राउंड. ठीक है, फाइन. तो इतना कुछ था सर. आई कम फ्रॉम एग्रीकल्चर, वहां प्रॉब्लम्स देखा है, फार्मर्स है. आई होप आई कैन बी पार्ट ऑफ सम फार्मिंग इकोसिस्टम. मैं सर वहां एफपीओ चलाना चाहती हूँ, मैं सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाना चाहती हूँ, कि मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स खोल के बैठ जाऊं वहां पर. कुछ पापा का प्रॉब्लम, आई डोंट नो इफ यू कैन टॉक टू योर फादर, क्या प्रॉब्लम होता है एग्रीकल्चर में? मे बी हार्वेस्ट प्रॉब्लम हो रहा है या सेलिंग, व्हाटएवर यू कैन फ्रॉम हियर. ओके सर, माय मदर इज अ होम मेकर. ओके, उससे इंस्पिरेशन है कि इफ आई कैन, शी इज गुड एट दिस एंड दिस थिंग्स, मे बी उनको हटाकर मैं ऐसे महिलाओं के लिए कुछ बना सकूं. तो नया इंट्रोस्पेक्ट करो, आईएएस बन के करोगे क्या? Sir, बिकॉज एज इंस्टीट्यूशन यूपीएससी, आई एम नॉट हैप्पी गिविंग यू अ आईएएस बिकॉज यू आर सर्व योर पेरेंट्स. ठीक है, यू लॉस्ट अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी हियर. मैं तुम्हारा मॉक नहीं ले रहा हूं. ओके नेहा, yes, sir. आई एम जस्ट गेटिंग रेडी विथ मोर प्रेजेंस ऑफ माइंड वाले आंसर्स. ठीक है, थिंक अबाउट दिस अगेन. क्या करना चाह रहे हो? एंड टिपिकल आंसर शुड बी अराउंड दैट यू हैव द स्किल्स, यू हैव बीन सपोर्टेड, एंड यू हैव सीन सर सपोर्ट के साथ कितना किया जा सकता है. तो अगर मैं अपना सपोर्ट 2-3 लोगों पे लगा देती हूँ सर, इंस्पायर कर देती हूँ, आई थिंक मेरा जीवन सफल हो जाएगा. राइट? आई हैव सीन द प्रॉब्लम्स फार्मर्स फेस. बताओ कुछ स्पेसिफिक. पापा से बात करो. पापा का काम प्रॉपर एग्रीकल्चर है, फार्म वगैरह है, या कुछ और भी करते हैं? No, sir, only agriculture. एग्रीकल्चर. सो व्हाट टाइप ऑफ क्रॉप्स डज योर फादर ग्रो? Sir, Renfit type of crops like pearl millets, pulses, and sir, gawar. That's it, sir. Okay, and what type of problems your father has in farming? Sir, irrigation facilities are not available. हम्म. Sir, उसके लिए कितने बार फसल खराब हुआ है बताओ? sir, not entire crop system get damaged, but the productivity declines. And sir, इनकम कितना इम्पैक्ट होता है, कुछ आइडिया है? sir, I'm not aware about it. बैठो पापा के साथ, तब द आंसर बनेगा तुम्हारा. सर मैंने, हाउ मच लैंड डू यू हैव? कितना एकर्स? 2, 3, 10, 15, 30 एकर्स कितना होगा? Sir, not 10, 15. It is in bigas, sir. तो I'm फाइंड not- आउट कितना होगा बिघास. बेसिकली सर यू एस्टैब्लिश माय फादर इज अ स्मॉल फार्म, योर फादर इज अ मीडियम फार्मर. सर हमारी पूरी इनकम चलती है रेनफेड एग्रीकल्चर वगैरह से. एंड आई हैव सीन द प्रॉब्लम्स फार्मर्स फेस बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर. सॉइल प्रॉब्लम्स होते हैं सर, क्योंकि इरिगेशन नहीं है तो क्रॉप लॉस होता है. हमारा इनकम 10, 15, 20% फ्लक्चुएट कर जाता है. ओके सर, ये कंडीशन में सर आई थिंक इट वाज अ ब्लेसिंग, ओके, इन डिसगाइज या अदरवाइज, कि मेरे पेरेंट्स हमारे एजुकेशन. तुम अकेली बेटी हो या और बेटियां हैं, सिस्टर्स हैं? Me, sir. I'm the only daughter, and he's having one son, sir. ओके, yes, Yeah, sons. 2 siblings. Okay. Sir. And both of them sons, right? Yeah. No, sir. Brother and sister. Yes, sir. We are 2. One is me, and one is my younger brother, sir. What does your brother do? Sir, he's in college right now. अच्छा, तो ब्यूटीफुल स्टोरी बन रहा है तुम्हारा. सर पापा कम्स फ्रॉम दिस, मदर कम्स फ्रॉम दिस, ट्रेडिशनल फैमिली है. पर सर हमारे घर में, डिस्पाइट बीइंग अ डॉटर, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन. ओके, माय पेरेंट्स अलाउड मी टू गो आउट एंड स्टडी इन मिरांडा हाउस दिल्ली में आकर. बहुत ट्रेडिशनल फैमिली से आती हूँ, रीदे से आती हूँ. ये सबसे मुझे बहुत इंस्पायर किया है सर. ओके, माय मदर इज अ होम मेकर. हाउ एजुकेटेड योर मदर इज? कहाँ तक पढ़ी है? Sir, till her 10th class. 10th. So my mother is matriculate, but she understands the value of education. So it is this inspiration. I hope I can transform small families. तुम्हारा इतना प्यारा स्टोरी बन रहा है तुम्हारा.
मैंने एकदम कहते हैं ना जमीन से जुड़े हुए एग्जाम्पल बता रहे हो तुम, अपने एक्सपीरियंस, अपनी लर्निंग्स, योर ओन ह्यूमिलिटी, योर ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स द सिस्टम, ओके, बिकॉज योर फादर एंड मदर वर लीडिंग द सिस्टम, ओके। यहां से बोलो ना तुम अपना कहानी, ओके, स्पीक फ्रॉम हियर, तो तुम्हारा पूरा टोन चेंज होगा तुम्हारे बच्चे। या Yes, sir. पर्पस ऑफ लाइफ, एजुकेशन, नथिंग बुकिश, ओके, नथिंग बुकिश। वुमन हो, कमिंग फ्रॉम अ डिफिकल्ट एरिया, ट्रेडिशनल राजस्थान, आई डोंट नो तुम्हारे फैमिली एरिया क्या है, अदरवाइज वेरी ट्रेडिशनल इन जनरल, ठीक है, बहुत नॉर्म रूल्स लागू, पर्दा वर्दा होता है, राजस्थान में खूब होता है। तो उसके Yes, बावजूद sir. तुम यहाँ आए हो, इतना दूर आए हो, अच्छे स्टूडेंट रहे हो, ओके, तुम्हारा स्टोरी बन गया, बहुत बढ़िया स्टोरी बना तुम्हारा। Sir, I was college president also. Can I ए add ले, that? ऑफ कोर्स ऐड करो और फाइंड अ वे टू टॉक अबाउट इट, ओके। तुम्हें ग्राउंड बनाना पड़ेगा। मैंने पूछा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, ये पर्पस ऑफ लाइफ में तुम इतना कुछ डाल सकते हो, माय गुडनेस, ओके। यू आर लाइक ए हॉट रेज्यूमे सिटिंग, जो बात ही नहीं कर रहा है, डरे डरे हो। प्रेसिडेंट हो तो डरे क्यों यार, तुम तो कैंपेनिंग निकले होगे। Yes, sir. नेहा, चेंज योर माइंडसेट, ओके, हाउ यू आर डीलिंग विद द बोर्ड। दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू शो व्हाट यू आर केपेबल ऑफ, ओके। और एरोप्लेन में डस्ट फंस के वोल्केनो से कैसे बर्बाद हुआ, वो सब हैंडल कर लोगे आप, उससे आईएएस नहीं बनने वाले, बनोगे ये टॉपिक से बनोगे आईएएस। या Sir, I will internalize all of this today. यस, योर प्रिपरेशन इज नॉट लिमिटेड टू रीडिंग करंट अफेयर्स, ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछूं तुम्हें? Yes, sir. अच्छा, व्हाट डू यू नो अबाउट इंडियाज प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू यूएस टैरिफ्स? Sir, it is because of multifaceted reasons. One is the small MSMEs, which are going to impact because of the exports are going to decline. And so second, their products won't be competitive in US market, and they are going to have they are going to suffer losses that is going to impact the labors, as we are seeing so many MSMEs are basically work on the contractual labor. So, sir, people are going to lose their jobs. Sir, second would be the export of farmers in terms of the grains would be impacted, as they are putting tariffs over the quality, and there are a lot of other known tariff barriers which is going to impact our farmer community, which is almost 45% of India's occupation. Sir, third is it is going to hurt the very common man at the end of the day in terms of the repercussions which are indirectly going to flow from the higher tariffs in terms of economic uh, So fallout. which common man are referring to? Common man in India or common man in US? Sir, in India. Sir, in terms of, sorry, sir, I forgot what I was saying. Can I have a moment? Yeah, please. Yes, sir. Sir, common man in terms of the value of rupee is going to decline because the trade deficit will increase as we are going to get less dollars, and that is going to impact ultimately the common man in terms of increasing inflation, sir. अच्छा, अब एक काम करो, फॉर फ्यू सेकेंड्स थिंक, ये पूरा टॉक को ऑर्गेनाइज, पहले बताओ मैंने क्या पूछा था, यूएस क्वेश्चन याद है? टैरिफ्स के प्रॉब्लम क्या है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, तो एक बार इसको ऑर्गेनाइज करो। योर कन्वर्सेशन टेल्स मी यू नो अ लॉट, बस इसको ऑर्गेनाइज कर दोबारा बोलो। sir, the problem lies with hurting the common man's sentiment of शुरू से बोलो ना ठीक से। sir, like 1 2 3 which I was आई referring. डोंट नो, यू ऑर्गेनाइज इट, ऑर्गेनाइज करके बोलो। Sir, our MSMEs are going to hurt with
reducing competitiveness in the global market, that is USA, where our more export basket lies, and which is ultimately going to affect the labor at the bottom line. Second would be, sir, the farmers are going to impact because they are not going to have a fair price availability, and they are But going how to, much of exports was agriculture exports to US? so very less. Then why talk about farmers being impacted? Sir, I have read somewhere that it was some farmers which are going to impact the fisheries sector or the marine farming. तो बोलो ना वैसे. In general, I think farming पे इतना impact होगा नहीं. But sir, I think there'll be impact on fishery sector. ऐसे बोलो. जनरलाइज क्यों कर रहे हो? MSMEs में बताओ कौन से MSMEs? Textiles and apparels. वैसे बोलो, वहां पर मिस होने वाला है. ठीक है, और बताओ. Sir, the gems and jewelry market of the MSMEs is going to impact it. And where the local craftsmen work, they are going to lose their job. कौन से क्राफ्ट्समैन की बात कर रहे हो? Sir, the local people who work on the gems and jewelry and The the, labor in gems jewelry sector. ठीक. yes, sir. और बताओ. अगेन घुमा फिरा के वहीं आ रहा है नेहा. ये करंट अफेयर्स के इश्यूज हैं. ठीक है, ये तुम्हें जानना ही पड़ेगा एंड यू नो इट. इट्स जस्ट दैट कि जब तक मैं पूछता नहीं हूं तुम स्पेसिफिक पे आते नहीं हो. मैं पुशिंग यू तुम बताते हो, अदरवाइज बड़ा जनरलाइज पे छोड़ देते हो. सो हर क्वेश्चन में, हर करंट अफेयर्स में गो इनटू दो स्पेसिफिक्स. ठीक है. Sir, how should I have answered this question? The very first specific of which if MSMEs I are if going I to was get answering in your, मैंने पूछा कि इसका इम्पैक्ट क्या है बताओ, तो इसको मैं तोड़ देता कि सर इम्पैक्ट यूएस में भी है, इम्पैक्ट इंडिया में भी है. यूएस एक बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है हमारा. ओके, एंड मर्केंडाइज भी हम एक्सपोर्ट करते हैं, सर्विसेज भी करते हैं. वाइल सर सर्विसेज इतना हिट नहीं होगा हमारा Yes. इमीडिएटली एटलीस्ट. ओके, बट मर्केंडाइज का इम्पैक्ट होने वाला है. बट ये मर्केंडाइज इम्पैक्ट भी सर साथ साथ नहीं होने वाला, बिकॉज ऑनेस्टली ग्लोबल लेवल पे ऑल्टरनेटिव्स टू इंडिया नहीं है. फार्मास्यूटिकल इंडिया ही मेन रहेगा. ओके, एक्सपोर्ट ऑफ जेम्स एंड ज्वेलरीज, डायमंड्स, नो अदर कंट्री कैन चैलेंज इंडिया राइट नाउ. ओके, और ये वो कंज्यूमर्स हैं जो हाई एंड कंज्यूमर्स हैं या फिर नेसेसिटी कंज्यूमर्स हैं. ठीक है, तो इनका शायद इतना इम्पैक्ट होने वाला है नहीं शॉर्ट टर्म में. और इसी की वजह से सर आई थिंक इंडिया का ओवरऑल ट्रेड इम्बैलेंस ज्यादा बिगड़ा नहीं है डिस्पाइट, बट द इम्पैक्ट हैज बीन मोर ऑन द यूएस. लाइफ बड़ी कॉस्टली हो गया है, इन्फ्लेशन हो गया है एंड ऑल ऑफ दैट. बट मुझे ये भी लगता है सर कि अल्टीमेटली दिस काइंड ऑफ वोलेटाइल कंडीशंस मेक इट इंपॉर्टेंट दैट इंडिया डाइवर्सिफाइज इट्स ट्रेडिंग पार्टनर्स, जो कि इंडिया कर रहा है विद FTAs, विद ये विद वो. ठीक है. एंड सर मुझे लगता है ये सारा चीज इज नॉट समथिंग विच यूएस विल स्टिक विथ, बिकॉज दे विल बी इम्पैक्टेड. थोड़ा ट्रांजैक्शनल चल रहा है टू बुलडोज इंडिया इनटू एग्रीकल्चर ट्रेड मार्केट. आई थिंक विद इन 1 year टाइम शायद मोस्ट ऑफ दिस टैरिफ्स विल बी आल्सो विथड्रॉन. तो ऐसा कुछ मिलाकर यूएस पे क्या इम्पैक्ट है, इंडिया पे क्या इम्पैक्ट है, क्या कर सकते हैं. ओके, एंड बी स्पेसिफिक. पता है फिशरीज में हो सकता है, एग्रीकल्चर में ओवरऑल ना हो. ठीक है, वो कुछ बोल सर रहे थे तुम मुझे, बताओ. सर अगर ये आंसर बहुत बड़ा हो गया तो कोई इशू है क्या? क्योंकि इसमें मैं ये भी बता रही हूँ कि इंडिया को क्या प्रॉब्लम्स फेस हो रही है, यूएस को भी क्या इम्पैक्ट हो तो रहा है, जहां लग और रहा है बड़ा हो रहा अल्टीमेटली. है, हाँ पूछ लेना सर. डू यू वांट टू कंटिन्यू ऑन दिस? आई हैव मोर पॉइंट्स. पूछ लो वहां पर. कन्वर्सेशन है ना बेटा, ये थोड़ी क्या टिक मार रहा हूं मैं. अगर लगा लंबा हो रहा है मुस्कुरा देना वहां पर. सर आई होप आई एम नॉट गोइंग ओवरबोर्ड. इफ you can confirm you want me to discuss more, I can do so. Yeah, these are my initial points. I can discuss if you want me to discuss more. ऐसे बहुत पूछ लेना, काम करता हूँ. नेहा, we had a long session with you, but I didn't want to give up because तुम्हारा एक और सेशन था, I was told somewhere कि जाना था तुम्हें. हाँ सर, अभी 4:45 का था. अभी अच्छा. I'll go, sir. It is nearby only in 10 अच्छा minutes. ठीक. तो ठीक है, तुम कर लो. I'm over. Wait. I'm done with you for now. तो तुम कर लो, बट वही है कि रैंडम मॉक्स मत दो. हर जगह तुम्हें वही इनपुट मिलने वाला है, उसमें आप दुखी हो जाओगे फिर.
ठीक है, तुम्हें बेसिकली बैठ के सोचना है कि कैसे अपना डायमेंशंस लेके आओ। जहां भी जाओगे फिर वही मिलेगा फीडबैक, यू कम बैक से मैं तो बेकार हूं, मैं कुछ नहीं कर सकती लाइफ में टाइप्स। ठीक है, तो थोड़ा गैप दे दो अपने आप को, गिव योरसेल्फ 2 days गैप एंड जी रिवर्क ऑन दिस अगेन। ओके, सो माय इनपुट टू यू इज नॉट स्पेसिफिक ये एरिया पढ़ो, माय इनपुट टू यू इज हर टॉपिक को समझो कि क्यों पूछा जा रहा है, क्या लॉजिक है, क्या तुमसे इवेल्युएट हो रहा है। फैक्ट्स में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, अगर फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ भी रहा हूं, ओके, माय बिगर एम इज लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, एंड अटेंड मोर सेशंस, ग्रुप में देखो, अगर टाइम होता मैं होता यहीं बैठ के देखो, बाकी लोगों का मैं करता हूं। लर्न द प्रोसेस फर्स्ट बिफोर यू ओके गो आउट एंड फेस द बोर्ड। ठीक है, दैट्स फ्रॉम माय साइड देन फॉर टुडे नेहा, थैंक यू एंड सर। फील फ्री टू रीच आउट, यू कैन हैव मोर सेशंस विद मी, नो प्रॉब्लम। ठीक है, आप और भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सर ठीक आई है, लव आई टू हैव डोंट वन रिमेम्बर मोर सीइंग व्हेन यू आई। अर्लियर, आई डू नॉट नो तुमने ज्योग्राफी कहाँ से किया है। सर आपसे ही किया है इन या नेहा बोलो। 2021। सर आपसे ही किया है इन ओ यू 2021। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, ठीक है, हैप्पी देन तो आई हैव वेस्टेड इंटरेस्ट इन सीइंग यू थ्रू। ठीक है ठीक है, यू आर मोर देन वेलकम फॉर मोर सेशंस। ठीक है, एक देव सर का सेशन में ले लेना आफ्टर 1-2 दिन के बाद में शाम, यू विल हैव 2 डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। ओके, बट ओके डोंट रन श्योर। अराउंड टू मच, स्ट्रेंथन, पहले मसल बनाओ फिर कूदो। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट, अगर बैठना है तो बैठो, श्योर। अदरवाइज योर चॉइस। ठीक है, वील टेक अप योर शार्ट नाउ, थैंक यू सर। बाय। ओके।